हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रतन क्लासेस। आज हम डीएसएसबी की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और हम फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस। व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? which have both magnitude and direction. Example, displacement, velocity. Now we will talk about displacement and the distance. Distance is the actual path covered by the body, and displacement is distance between the initial point and the final point, or you can say difference between the initial point and the final point. So there is a body A and body B, and A reaches to B by following this path. Okay, then the distance will be the actual length of the path covered by, let's say it's 100 meter. And displacement will be the difference between these 2 points, let's say 20 meter. Both have the same SI unit, meter. Now let's talk about speed and velocity. Speed is the change in the distance with respect to time. Change is the distance upon time, and velocity you will say displacement upon time. इनका ऐसा यूनिट क्या हो जाएंगे? मीटर पर सेकेंड दोनों के। Now what is uniform velocity? If a body covers equal distance in equal intervals of time, then it is known as relative speed. If we talk uniform speed. If we talk about uniform velocity, then it will be the equal displacement in equal interval of the time. Then it is known as the uniform velocity. Now what is relative velocity? Relative velocity is always with respect to two bodies. Relative velocity is always with respect to two bodies moving in the straight line, either in the same direction or either in the opposite direction. Then the relative velocity will be the velocity of A with respect to velocity of B. That will be the relative velocity. Acceleration is the change in velocity with respect to time, that is velocity upon time. velocity का क्या है? मीटर पर सेकेंड, और t का 1 सेकेंड और आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, then it is known as retardation. It is known as retardation. Now motion. Body is said to be in motion if it changes its position with respect to time. अगर एक बॉडी अपनी टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज कर रही है, तो उस बॉडी को हम क्या कहेंगे? बॉडी को मोशन में कहेंगे. अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की. If a body is set an angle, is thrown at an angle with respect to horizontal plane, and it falls freely under the gravity, then that motion is known to be projectile motion.
अगर एक कोई भी चीज को हम एक एंगल पे हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ फेंकते हैं तो वो क्या करेगी, एक मोशन को फॉलो करेगी जिसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, और इस पाथ को हम पैराबोला पाथ कहते हैं। ये एक एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, और इसके ऊपर और कोई फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए। वो किसके अंडर, फ्रीली शुड बी सेट अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर जब फ्रीली फॉल करती है तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अगर ये एंगल 45 डिग्री होता है देन द रेंज इज मैक्सिमम। वो चीज सबसे ज्यादा दूर जाके कब गिरेगी, अगर ये एंगल 45 डिग्री है, मैक्सिमम एट 45 degrees. Now circular motion. If a body is moving in a circular path, then body is said to be in a circular motion. अगर कोई भी चीज गोल सर्कल के अंदर घूम रही है, ऐसे सर्कल में घूम रही है, ये रेडियस हो गया, तो उस बॉडी को क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन में। Then what is the angular velocity? The time rate of change of angular displacement of a particle relative to its origin angular velocity. जो स्टार्टिंग में जो उसका एंगल था, ये जो एंगल था जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू, ये जो एंगल में चेंज आ रहा है बॉडी के, उसे विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंगुलर वेलोसिटी, उसकी जो स्टार्टिंग में एंगुलर वेलोसिटी थी उसके रिस्पेक्ट में, उसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। दैट इज नोटेड बाय w थीटा बाय t। दिस इज द चेंज इन द एंगल विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। लेट्स टॉक अबाउट न्यूटन्स लॉ। फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, बॉडी अपनी एक इनिशियल स्टेट पे रहेगी या इनिशियल स्पीड पे रहेगी अनटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना अप्लाई हो। अगर वो एक स्पीड से चल रही है तो वो उसी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती रहेगी अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन कहते हैं। इसे हम फर्स्ट इनर्शिया लॉ भी कहते हैं। बिकॉज इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी दैट टेंड्स टू बी इन इट्स स्टेट। अगर हम जैसे कोई भी गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी एकदम से स्टार्ट होती है तो हम आगे की तरफ झुकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें रेस्ट में बैठने का वो था और एकदम से चेंज हो गया तो हमारी बॉडी अपोज करती है कि हमें नहीं, मोशन में नहीं जाना है, रेस्ट पे ही रहना है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया प्रॉपर्टी। Force is defined as mass into acceleration. And what is acceleration? V minus u upon t. V minus u upon t. V क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या है, kg, एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन। दिस इज डिफाइंड एज न्यूटन। नाउ व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ, second law of Newton says that the rate of change of momentum of body is directly proportional to external force applied. जो मोमेंटम है बॉडी का वो किसके इक्वल है, जो चेंज इन मोमेंटम है बॉडी का वो किसके इक्वल है, किसके प्रोपोर्शनल है, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है बॉडी पे। एंड फोर्स इज डिफाइंड एज मास इनटू एक्सेलरेशन। सो सेकंड लॉ itself contains the first law. Now what is the third law? Every action has equal and opposite reaction.
Now what is momentum? Momentum is the property of moving body that is defined as mass into velocity. That is defined as mass into the velocity. That is scale, it's a vector quantity. तो मास का क्या हो जाएगा kg, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड. तो kg मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट्स ऑफ मोमेंटम. नाउ व्हाट इज इम्पल्स? Impulse is the large amount of force act on body for very small time. इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? SI यूनिट क्या है? न्यूटन फोर्स के Newton per second is defined as the impulse SI units. Now what is the centripetal force? When body is moving in a circular path, a force is applied towards the center of the circle, that is known as centripetal force. जब साइकिलिंग करते हैं और एक टर्न लेते हैं, जो सर्कल की फॉर्म में ऐसे टर्न आता है, जब वो टर्न लेते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को अंदर की तरफ बेंड कर देते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, जो उनका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एक्ट करता है और उनकी स्पीड को इंक्रीज कर देता है. दैट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द पर्सन. इट इज डिफाइंड एज mv² divided by r. mv² divided by the r. R is the radius of the circle, m is the mass of the body, v is the velocity of the body. Now we will talk about equilibrium. If the total force applied on the body is 0, then body is said to be in equilibrium. What is friction? When a body is moving on the surface or rolling on the surface, then an opposite resistance is applied on the body. That is known as friction. अब फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं, लिख पाते हैं, बिकॉज एक अपोजिट फोर्स अप्लाई होता है. दैट इज नॉन एज फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन अगर मशीन्स में या किसी चीज़ में ज़्यादा हो जाए तो उसका वर्क कैपेसिटी को डिक्रीज कर देता है, इसलिए हम मशीन्स की ग्रीजिंग करते हैं, ठीक है, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा. नेक्स्ट क्लास में हम वर्क पावर एंड एनर्जी करेंगे. प्लीज़ चैनल को फॉलो करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.